Very good morning, students. So we have done the chapter of light in our previous class, and today I am going to start a new chapter, that is lesson number 10, sound. What it is, children? Lesson number 10, sound. So you could have heard the word sound, isn't it? Sound क्या होता है हम सबको पता है. Now what we are going to learn in this chapter, at the end of this chapter, मतलब पूरा chapter जब अपन learn करेंगे, what we will know about, what we will come to know about is identify different types of sounds. We can hear so many types of sounds, so you can differentiate between each and other sound. Okay, children? The second one, describe the sounds we make, how the sounds what we are making, we can give a detailed explanation of those. Differentiation between pleasant and unpleasant sounds. So what are pleasant sounds and what are unpleasant sounds, you can easily differentiate them. Recognize animal sounds and identify sounds in nature. We know that different types of animals make different types of sounds, so you can come to recognize means you can identify the sounds, the different types of sounds made by the animals, and even some sounds are present in our nature also, so we can come to know about that also. So let us go through the chapter and know more about each and everything in detail. So first of all, think about it. See this corner that is given here, rubber band guitar. आप एक rubber band guitar बना सकते हो. How? Take a shoe box without the cover and wrap rubber bands around it. You can just take any shoe box, कोई भी छोटी सी shoe box, जैसा shoes, sandals ये लेते हैं तो आपको एक box मिलता है ना, इसी कोई box ले लीजिएगा and उसके ऊपर अच्छा से rubber bands वो जो नॉर्मली अपन कोई चीज़ को टाई करने के लिए जो रबर बैंड्स यूज़ करते हैं, पेपर चार्ट वगैरह, ऐसी वाली फैंसी रबर बैंड्स मत लीजिए, वो वाली रबर बैंड्स लीजिए जो स्ट्रेचेबल होते हैं. नाउ प्लग द रबर बैंड्स बैक एंड फोर्थ. अच्छे से पहले पूरा शू बॉक्स में, आपकी शू बॉक्स की साइज़ के ऊपर डिपेंड करके इतना सारे रबर बैंड्स आप रैप कर सकते हो. एंड उसके बाद नाउ प्लग द रबर बैंड्स बैक एंड फोर्थ. प्लक मतलब जैसा हम फ्लावर को प्लक करते हैं, तोड़ते हैं, इसी रबर बैंड को आगे बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे करिए, जैसा थोड़ा स्ट्रेच करिए पीछे आएगी, छोड़ दीजिए आगे जाएगी. लुक एट द मूवमेंट ऑफ द बैंड्स. जब आप ऐसा प्लग कर रहे हो, बैक एंड फोर्थ जब आप कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए? यू हैव टू ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द बैंड्स, हाउ द बैंड्स आर मूविंग. you have to pay concentration on that. Okay children, do you hear anything? Can you hear at that time or not? If you want to hear, what you have to do is you have to do this practically. Where do you think the sound is emerging from? So underline the word emerging. Emerging क्या होता है? Comes out. From where it is coming from? कहाँ से ये exist हो रही है, ये sound कहाँ से आ रही है? When you plug the rubber bands, they vibrate and produce sound. So आप जैसा रबर बैंड को प्लग कर रहे हो तो पूरा रबर बैंड में क्या होता है? वाइब्रेशंस आएंगे. वो वाइब्रेशंस जो आते हैं वो वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होते हैं. साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज. सो इससे हमें क्या समझ में आया कि कभी भी साउंड कब प्रोड्यूस होता है? जब अब कोई भी बॉडी वाइब्रेट होता है, देन इट विल प्रोड्यूस सम और अदर साउंड. वाइब्रेशन क्या होता है? मूवमेंट. ओके चिल्ड्रन, नाउ let us see the first topic that is given here. What is sound? So the chapter itself is sound. So first of all we have to know what is sound. Sound होता क्या है? The roar of a lion. Lion की sound क्या है? हमने already in our previous classes we came to learn about the sounds made by the animal. Lion कैसा sound करते हैं? दहाड़ते हैं, means roaring. The roar of a lion. The buzz of a bee. Bee की sound क्या होता है? Buzz जो sound आता है. So buzz of a bee means buzz is the sound made by the bees. The chirping of a bird मतलब the sound made by the birds. अर्ली मॉर्निंग आप उठ के सुनो तो बर्ड्स की आवाज़ आप सुन सकते हो. ऐसा जो बर्ड साउंड करते हैं उसको हम बोलते हैं चिरपिंग. द रसल ऑफ लीव्स. रसल RUSTLE मतलब लीव्स भी हल्का जब हिलते हैं तो भी शांत वाली नेचर में कहीं जहाँ ट्रीज है उस जगह आप अर्ली मॉर्निंग जाके आप वो ट्रीज़ के रसलिंग ऑफ ट्रीज. रसलिंग मीन्स द लीव्स से जो भी साउंड आता है उसको हम रसल बोलते हैं. रसल ऑफ लीव्स. द स्लैमिंग ऑफ द डोर. डोर को स्लैम करना मतलब डोर को आप फटाक से ओपन करना या बंद करना, डोर को स्लैम करने को.
द पिटर पैटर ऑफ रेन, रेन ड्रॉप्स जो आते हैं किससे आते हैं, पिटर पैटर, रेन ड्रॉप्स, ये आप छोटे से आप ये वर्ड सुन रहे हो. सो बिकॉज व्हाट इज पिटर पैटर मीन्स द साउंड दैट इज मेड बाय द रेन. All these are sounds. So what we consider all these as, we consider all these as the sounds made by different bodies. तरह तरह की things से अलग अलग तरीके के sounds produce होते हैं, and we have given some names too. So what are the sounds here we can see is roar, buzz, chirping, rustle, slamming, the pitter patter and all these. ओके चिल्ड्रन. सो आपने इतना तरह के साउंड्स के बारे में आपने सुना. जैसा अपन बात कर रही है, एक साउंड है, इस साउंड का भी बहुत इफेक्टिव होती है अपने कम्युनिकेशन में. जैसा मैं ज़ोर से बोल रही हूँ मीन्स हाँ आपको समझ में आता है कि हाँ मैम गुस्सा में है, मैम कुछ चिल्ला रहे. जैसा मम्मा भी घर पे ज़ोर से आपको डांट रहे, मतलब तब यू कैन लिसन ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड. अगर कभी हम आराम से भगवान की प्रेयर कर रहे, कोई म्यूज़िकल गाना गा रहे, तब उसकी साउंड अलग होता है, इजंट इट. सो इतनी तरह तरह के साउंड. सो ऑलरेडी आप फेमिलियर है, वी आर वेरी फेमिलियर विथ सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड. सो कैन यू सी साउंड. कभी किसी ने साउंड को देखा क्या चिल्ड्रन? लाइट को तो आप देखते हो है ना, तो ऐसा साउंड को भी देखा क्या किसी ने? नो, इजंट इट. साउंड कभी देखा क्या आपने? नहीं. साउंड को हम क्या कर सकते हैं? वी कैन हियर द साउंड्स. वी कैन हियर द साउंड्स यूजिंग आवर सेंस ऑर्गन्स. ईयर्स आर अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड वी कैन हियर. हम सिर्फ सुन सकते हैं साउंड को, वी कैन नॉट सी साउंड्स. सो व्हाट डज अ बेबी डू व्हेन ही और शी इज़ हंग्री, है ना. ह्यूमन्स की फर्स्ट स्टेज क्या होते हैं? जस्ट होने के बाद जो स्टेज है उसको बेबीज मीन्स इन्फेंट्स बोलते हैं उनको. जब तक वो 1 ईयर 2 ईयर्स की एज तक नहीं होते हैं, इनको इन्फेंट्स कंसिडर किया जाते हैं. मीन्स जब तक वो अपने आप को कुछ बोल नहीं पाते हैं, दे कांट कम्युनिकेट विथ अदर्स, ओनली वो अपनी तरह तरह के साउंड से उनको हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ता है. तो छोटी सी बेबी जो हो मोस्टली 3 मंथ्स 5 मंथ्स 8 मंथ्स जो भी, व्हाट डज अ बेबी डू व्हेन ही और शी इज़ हंग्री. मोस्टली छोटे बच्चे रोते हैं तो क्या समझ में आती है उसकी मदर को? नो, आई थिंक द बेबी इज़ फीलिंग हंग्री और द बेबी इज़ हैविंग सम और अदर पेन. ऐसा कुछ हम गस कर सकते हैं क्योंकि बेबीज कैन नॉट एक्सप्रेस एनी थिंग. दे कांट टॉक, दे कांट communicate, but they communicate through these symbols. That why does a baby what does a baby do when he or she is hungry? क्या करते हैं जब भी उनको भूख लगता है? तो बस जोर जोर से रोते हैं, चिल्लाते हैं. तो हम समझ जाते हैं. वी कैन नॉट सी साउंड. कभी भी आप साउंड देख सकते हो? नो, बट वी कैन हियर डिफरेंट साउंड्स एवरी डे, है ना. एवरी डे वी यूज टू कम अक्रॉस सो मेनी टाइप्स ऑफ साउंड्स. We make sounds when we talk, है ना. अभी now what I am doing is मैं आपको कुछ समझा रही हूँ. मैम आपको, yes मैम is teaching you something. How we are hearing? Because I am producing some sound in the way of some words using some language. एक language में either it may be English और हिंदी यूज़ करते हुए मैं कुछ sounds बोल रही हूँ जिसको आप सुन रहे हो मेरे sounds को and आप समझ रहे हो. So we make sounds when we talk. So it is clear that जब भी अपन बातें कर रहे का मतलब क्या है? वी आर मेकिंग सम और अदर साउंड, है ना. बोलने का मतलब ही है साउंड मेक करना. वी कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय टॉकिंग. सी द वर्ड चिल्ड्रन, कम्युनिकेट, COMMUNICATE, कम्युनिकेट. कम्युनिकेट करना मतलब टू एक्सचेंज आइडियाज और इन्फॉर्मेशन. सिंपली सेइंग अबाउट व्हाट इज़ कम्युनिकेशन मतलब टॉकिंग. अभी मैं क्या कर रही हूँ आपसे? मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ मीन्स आई एम टीचिंग यू समथिंग. सो इन ऑर्डर टू टीच यू समथिंग, आपसे कुछ बोलना हो, मुझे सिखाना है कुछ हो तो आई नीड टू टॉक, आई हैव टू टॉक, है ना. So I am producing some sounds using a particular language and I am teaching you something. How? By producing some sound and you are just hearing that and you are grasping what ma'am is teaching you. People all over the world talk in various languages. Isn't children? We know that अपनी country India is a diversified country. मतलब तरह तरह की languages, तरह तरह की culture traditions है अपनी country में. And so many states and so many union territories are there. So हर state में अपना एक local language होता है. जैसा आप राजस्थानी हो तो आप मारवाड़ी बोलते हैं, कुछ लोग मेवाड़ी बोलते हैं, सिंधी, तरह तरह की languages आप सुन सकते हो, है ना. And mostly हिंदी चलती है इधर. In the same way आप being an
English medium student, you also used to understand English also. We can speak in English. And other states में, पंजाब में मोस्टली पंजाबी यूज़ करते हैं, गुजरात में गुजराती, साउथ में साउथ इंडियन लैंग्वेजेस, ऐसा हर स्टेट के अपना एक लैंग्वेज होते हैं. एंड सो इफ़ वी टॉक अबाउट ओनली आवर कंट्री, बट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज है. एंड सो मे ऑल द पीपल यूज टू टॉक in different types of various, so many various languages are there. All these languages are made up of different sounds. So किसकी बेसिस पे ये सब लैंग्वेजेस बनाया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ सम साउंड्स. जैसा मैम ने बोला साउंड, आपको साउंड कैसा पता है? जब आप छोटे थे इन यार प्री प्राइमरी क्लासेस, व्हाट यू हैव लर्न, फोनिक साउंड्स आपने सीखा था. ब साउंड आ रही है तो यू हैव टू राइट बी. हिंदी में अगर ड साउंड आ रही है तो यू हैव टू राइट डी. ऐसा बुक है बू, ब, उ, डबल ओ, के, क. तो ऐसा हम फोनिक साउंड के हिसाब से एक लैंग्वेज को हम सीखे थे, अपनी लैंग्वेज से एक फोनिक साउंड्स क्रिएट करके उस साउंड के ऊपर. और पहले आपको साउंड्स कैसा पता है? हिंदी में भी आप क्या स्वर, व्यंजन, ये सब क्या है साउंड से, अ, ई, ये सब सीखे थे. फिर व्यंजन सीखे थे, फिर मात्राएं सीखे थे आपने, है ना. फिर मात्राओं के ऊपर से आप वर्ड्स बनाना सीख गए. So on the basis of the sound itself we are going to learn any language. कोई भी लैंग्वेज हो उसका सबका भी एक वर्णमाला होती है. जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट है, बेस्ड ऑन द साउंड्स ऑफ द अल्फ़ाबेट वी आर गोइंग टू राइट सो मेनी इनफाइनाइट एंडलेस वर्ड्स हम लिख सकते हैं. इन द सेम वे हिंदी में स्वर और व्यंजन और मात्राएं यूज़ करके भी आप बहुत कुछ लिख सकते हो. सो चिल्ड्रन, एनी लैंग्वेज का बेसिक क्या होता है? ओनली बाय यूजिंग साउंड्स. ऑल दिस लैंग्वेजेस, कोई भी लैंग्वेज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट साउंड्स, तरह तरह के साउंड्स के ऊपर डिपेंडेंट है. वी मेक ऑल टाइप्स ऑफ साउंड्स विथ आवर वॉइस बॉक्स. सो हम कैसा कर रहे हैं ये साउंड सब? अपनी बॉडी में भी कोई ऐसा एक ऑर्गन होगा, कोई एक बॉडी पार्ट ऐसा होगा जिसके थ्रू वी आर प्रोड्यूसिंग द साउंड्स. सो वी ह्यूमन्स मेक ऑल टाइप्स ऑफ साउंड्स. जो भी तरह के साउंड्स अपन कर सकते हैं. जैसा सिंगर को कितने तरह की आवाज़ों में उनको हर एक गाना के अलग अलग तरीके से गाना पड़ता है, इज़न्ट इट. और फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर सिंगर्स हो गया है. और जैसा अपन भी जब बोलते हैं तो कभी आपको कैसा बात करनी है, किसी से अपनी फ्रेंड से बात कर रहे हो खुशी से तो धीरे धीरे बोलते हो, और बहुत ज़्यादा खुश हो तो थोड़ा चिल्ला के, अगर गुस्सा आ रही है उसका अलग ही टोन यूज़ करेंगे आप, इज़न्ट इट. तो हम भी कितना तरह तरह के साउंड्स मेक करते हैं, और कितनी तरह तरह की जो भी साउंड्स अपन प्रोड्यूस करते हैं वो सब आते कहाँ से? फ्रॉम आर वॉइस बॉक्स. कहाँ से बेटा? वॉइस बॉक्स. सो व्हाट इज़ दिस वॉइस बॉक्स? द वॉइस बॉक्स इज़ द स्ट्रक्चर एट द टॉप ऑफ द विंड पाइप दैट कंटेन्स द ओकल कार्ड्स. तो आप इधर इसके लिए पिक्चर नंबर फिगर 10.1 को रिफ़र कर सकते हैं. जैसा आप अपने माउथ को कंप्लीट ओपन करिए तो इधर एक एरो मार्क दिया है ब्लैक कलर की, वी कैन सी हियर. उधर अपनी वोकल कार्ड्स, अपनी वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है. मतलब अपने माउथ के अंदर, अपने थ्रोट में एक वॉइस बॉक्स है. वो क्या है? दिस इज़ अ स्ट्रक्चर. ये ऐसा एक बना हुआ स्ट्रक्चर है. ये कहाँ पे है? एट द टॉप ऑफ द विंड पाइप. विंड पाइप पता है ना, जिसके थ्रू हम अपनी फूड पाइप है जिसके अंदर से फूड जाता है, विंड पाइप है जिसके थ्रू अपनी रेस्पिरेटरी प्रोसेस मतलब ब्रीदिंग की प्रोसेस चलता है. सो विंड पाइप के ऊपर एक वोकल वॉइस बॉक्स है. वो वॉइस बॉक्स में वोकल कॉर्ड्स होते हैं. व्हाट दे आर चिल्ड्रन? वोकल कॉर्ड्स. वोकल कॉर्ड्स होते हैं. जैसा पियानो ये सब आपने देखा हो, गिटार, उसमें भी तरह तरह की स्ट्रिंग्स, कॉर्ड्स ये सब होते हैं. ऐसा अपनी वॉइस बॉक्स के अंदर, अपनी थ्रोट में, अपनी वॉइस बॉक्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं. आर वॉइस बॉक्स हैज़ वोकल कार्ड्स. सो अपनी वॉइस बॉक्स में वोकल कार्ड्स होते हैं विच वाइब्रेट व्हेन वी स्पीक और सिंग. सो ये वोकल कार्ड्स क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, मतलब मूव होते हैं. जैसा आप अपना माउथ ओपन कर रहे हो या क्लोज कर रहे हो, कोई भी साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब कैसा वो साउंड आ रही है बाहर, ये वोकल कार्ड्स अपनी ऊपर नीचे ऐसा मूव होके ये साउंड प्रोड्यूस कराते हैं. एक्चुअली अपन छोटे से बोल देते हैं तो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छा से आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं. बट नाउ हम एक एक्टिविटी भी करेंगे जिसके थ्रू आप अपने आप को रियलाइज़ करेंगे कि हाँ, यस, आर वोकल कार्ड्स आर मूविंग. ओके चिल्ड्रन, सो दिस इज़ ऑल अबाउट साउंड.
सो फ्रॉम वेयर द ह्यूमन बॉडी क्रिएट साउंड, अपनी ह्यूमन बॉडी में साउंड क्रिएट करने का वो कहाँ है, वॉइस बॉक्स। फ्रॉम वेयर द साउंड कम्स फ्रॉम द वॉइस बॉक्स। ये वॉइस बॉक्स कहाँ है, इट इज़ अ स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द विंड पाइप। विंड पाइप जो है उसके ऊपर रहता है एंड इसके अंदर क्या है, वोकल कॉर्ड्स होते हैं एंड दीज वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट। जैसा भी आप मुंह खोल रहे हो, मतलब वो किसी के लिए भी हो, बात करने के लिए हो, प्रे करने के लिए हो, सिंग करने के लिए हो, और ज़ोर ज़ोर से गाने के लिए हो, किसी के लिए भी, जैसा आप माउथ ओपन करेंगे बंद करेंगे तो उस वाइब्रेशन से वेराइटीज ऑफ साउंड्स वी कैन प्रोड्यूस। Is it children? So is it okay children now? Hope you could have understood about what is sound. Now let us do different types of साउंड्स। तरह तरह के साउंड्स क्या है जो हम सुनते हैं डेली, या हम we also used to make. What are they? Let us see. Sounds we make different sounds when we talk. Yes, जब बातें करते हैं बहुत तरह तरह के साउंड्स करते हैं। लाफ, देखो सबकी लाफिंग की एक्सप्रेशन भी, लाफिंग की साउंड भी अलग अलग है। आप ऑब्जर्व करिए अपने घर पे, अपनी फ्रेंड्स का, अपने रिलेटिव्स का, सबका लाफिंग स्टाइल सुनिए तो सबका अपना एक अलग तरीके से, अलग साउंड से हंसते हैं। शाउट, चिल्लाने का भी कैसा शाउट करते हैं। क्राई, रोएंगे तो भी रोने का भी सबका अलग अलग, कोई धीरे धीरे रोते हैं, कोई तो बहुत ज़ोर ज़ोर से की ताकि पूरा उस कॉलोनी में सबको सुनाई दे, है ना। कफ करते हैं अपन को, जब अपन को खांसी होता है तो भी आप अलग साउंड जो अपन थ्रोट से क्रिएट करते हैं आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। और स्नीज जब करते हो आप, उसमें अलग साउंड, अलग तरीके के साउंड सुन सकते हैं। सो वी मेक साउंड्स, तरह तरह के साउंड्स कब अपन मोस्टली मेक करते हैं, व्हेन वी स्नीज, जब अपन स्नीज करते हैं। आपको ज़्यादा सर्दी हो गया, नाउ विंटर्स हैव ऑलरेडी अराइव्ड. Now everybody will face this problem of cough and cold. So when we sneeze, when we cough, when we touch a hot object, आपको पता नहीं है और अचानक कोई हॉट ऑब्जेक्ट के ऊपर हाथ लगाए तो क्या है, आराम से स्माइल करेंगे आप। डू यू स्माइल चिल्ड्रन? नो ना। व्हाट यूज टू, अपनी स्टाइल में सब चिल्लाएंगे। वी लाफ आउट लाउड, कभी कोई ह्यूमर मूवी, मतलब कोई भी जोक्स वगैरह आप देख रही हो, पिक्चर में कोई ऐसा सीन आया तो कैसा हंसते हैं हम। वी शाउट, कई बार शाउटिंग करते हैं। खेलते टाइम आपको देखना चाहिए, और कभी मैम आने में 5 मिनट लेट हुआ, या वैसे आप जब फ्री बैठते हो, मतलब कोई टीचर नहीं आया या एक टीचर गए, दूसरे टीचर आने के बीच में देखना अपनी क्लास से कैसी शाउटिंग आती है ना। एंड व्हेन वी क्राई आउट ऑफ पेन और फियर, कई बार क्या अचानक आप, वी डोंट नो एंड यू कुड हैव हर्ट, आपको हर्ट हो गया तो तुरंत आप कैसा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं। या फियर, कभी अंधेरा में आपको अकेला कहीं दूसरी रूम में जाना पड़ा, या कहीं कभी कुछ देखा तो कैसा डरते हैं, तभी भी आप ज़ोर ज़ोर से कैसा चिल्ला के आवाज़ें करते हैं ना। सो वी ऑलवेज यूज टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स। नाउ टर्न योर पेज चिल्ड्रन। सी फिगर 10.2 हाउ वी मेक साउंड्स, हम कैसा साउंड्स करते हैं। देखो इन द फर्स्ट पिक्चर व्हाट द गर्ल इज डूइंग, शी इज टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। फिर कैसा चिल्लाएंगे, या कभी हंस रहे हो, कभी रो रहे हो। वी कैन सी अ वेराइटी ऑफ एक्सप्रेशंस हियर एंड वी यूज टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स इन ईच एंड एवरी एक्शन। कैन वी ऑल्सो मेक साउंड्स विदाउट यूजिंग आवर वॉइस बॉक्स? येस, अपनी वॉइस बॉक्स यूज़ करने के बिना भी अपन अपनी साउंड्स बना सकते हैं क्या? येस वी कैन। कैसा? सी द पिक्चर्स गिवन बिलो, नीचे पिक्चर्स देखिए आप। पीपल इन द पिक्चर्स आर मेकिंग साउंड्स विदाउट यूजिंग देयर वॉइस बॉक्स। यस, इधर जो भी पीपल है, मतलब हुएवर द पर्सन्स में बी, दे आर ऑल्सो मेकिंग साउंड्स। व्हाट दे आर डूइंग चिल्ड्रन? दे आर ऑल्सो मेकिंग साउंड्स, ये भी साउंड्स कर रहे। कैसा? विदाउट यूजिंग देयर वॉइस बॉक्स। दे आर, मतलब बिल्कुल वो अपनी मुंह खोल ही नहीं रहे हैं। दे आर नॉट यूजिंग देयर वॉइस बॉक्स, दे आर नॉट opening their mouth, and that's why there are no vibrations, but still they are making sounds. How? See in the first picture a man is knocking at the door, है ना, नॉक कर रहे डोर को। तो जब डोर को आप नॉक करते हो, what we used to do, we used to use our hand and we used to just knock on the door। तो इसमें अपनी वोकल कार्ड की तो कोई, वॉइस बॉक्स की, वोकल कार्ड्स की कोई रोल ही नहीं है। यूजिंग आवर हैंड वी आर मेकिंग सम साउंड्स। एंड इन द सेकेंड पिक्चर अ वुमन इज ग्राइंडिंग समथिंग इन अ मिक्सर ग्राइंडर में वो कुछ ग्राइंड कर रहे, कुछ पेस्ट बना रहे, पाउडर बना रहे। सो एट द टाइम ऑल्सो वी
can listen sound, but ये sound कहाँ से आ रही? Is she making any sound? No. From where the sound is coming from? The sound is coming from the grinder that she is using, the machine, the motor that is there in the grinder is making that sound. And in the third picture, a boy is what he is doing, a boy is doing, yes, he is playing ड्रम, है ना, ड्रम्स पे स्टिक से वो म्यूज़िक बजाते हुए कुछ आवाज़ कर रहे. इसमें वो अपनी वॉइस यूज़ कर रहे क्या? नो. कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, येस दे यूज़ टू म्यूज़िक भी, मतलब तबला वगैरह भी आप सीखे हो तो तबला में भी आप क्या अपनी मुंह नहीं खोलेंगे, बट यूजिंग दैट पर्टिकुलर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यू कैन प्रोड्यूस साउंड. वो इंस्ट्रूमेंट से, जो भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ही इज़ यूजिंग फ्रॉम दैट कॉन्गो, तबला, इन सब में आपको मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं, बट यू विल जस्ट सिंपली मूव योर हैंड्स एंड वी कैन प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स. And here also we can see one more boy, what he is doing, वो दो आयरन रॉड्स या पत्थर बड़े बड़े कुछ लेके उन दोनों की एक दूसरे के ऊपर आप कटकटाएंगे तो ऑब्वियसली वी कैन हियर सम साउंड, बट ही इज़ नॉट यूजिंग हिज वॉइस बॉक्स और एनी टाइप ऑफ वोकल cords to produce this particular sounds. So all these are examples that we can produce sounds without using our voice box. अपनी voice box use करने के बिना भी अपन अपना sound produce कर सकते हैं. Is it okay children? So now you just go through that chapter till here. Thank you.